Good evening, sir. Good evening, good evening. Okay, so today is the second day of this workshop. So today we will discuss about the AI powered writing and content generation. In this uh, under the this topic, we will learn about what is research, type of research, the importance of the AI tool in research, using Magic Write for abstract writing, summarization of the research finding, generating captions and titles, formatting academic template, poster, presentations and cover page. तो ये सारे टॉपिक्स आज वी विल कवर अप, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल go to the some slides here. After that we will do the practical on Canva. Okay, so first of all, exactly, I think most of the people from the research background, they are know about the what is research, but we will discuss here the very brief introductions of the research, है ना, कि what is the research, है ना? The research क्या है? The process, the systematic, क्रिएटिव, एविडेंस बेस्ड। गोल क्या होता है इसका? डिस्कवर द न्यू नॉलेज, डीपेन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एक्चुअली जब भी कोई रिसर्च करते हैं, व्हेनेवर यू आर डूइंग द रिसर्च, दिस इज द मेन फंडामेंटल ऑफ द रिसर्च, है ना? रिसर्च इज द जर्नी ऑफ द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशंस, aiming to the expand the understanding, uncover new knowledge, deepen existing knowledge and find solutions to the problem. ठीक है ना? तो whenever you are doing the you are doing the research, that means you are find something, है ना? You are you want to the answer the any questions which is in your research, है ना? तो तो उसका क्या है? सबसे पहले क्या होता है? द सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। रिसर्च फॉर द स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ इन द इन्वॉल्विंग define a questions, gathering the data, analyze it and drawing the conclusion, है ना? This ensure the data collections and analysis are the rigorous and unbiased, है ना? और दूसरी चीज होती है क्रिएटिव, while systematic research also initiative creativity, formulating new questions, design innovative methods, and interpreting the finding of all inquiry, imaginations, and thinking beyond the obvious. You know, the next one is the evidence base. If if there is no evidence in your research, that means that you are this is a not research, है ना? तो क्या होना चाहिए उसमें? एविडेंस होना चाहिए कि रिसर्च आप कर रहे हैं उसका बेस्ड क्या है ना? The research rely on the data and evidence, not just the proposal, opinions or beliefs. Data can come from the various sources like the experiment, survey, observations or existing record. ठीक है ना? और गोल क्या होता है इसका? डिस्कवर द न्यू नॉलेज, है ना? जो जो नई चीज को डिस्कवर करना और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये मेन मकसद होता है रिसर्च का। ठीक है ना? अब रिसर्च का मतलब जो टाइप्स है रिसर्च के वो क्या है? ठीक है, दो दो तरह के, मतलब बेसिकली मोस्ट ऑफ द, वैसे तो बहुत सारे इसके हिसाब है जो 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 मेन जो रिसर्च के टाइप्स है वो क्वांटिटिव रिसर्च है और क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, क्वांटिटिव रिसर्च में बहुत सारा की रिसर्च आती है ना, हम उसको ज्यादा डीपली नहीं जा रहे क्योंकि यार वी आर नॉट कवरिंग द रिसर्च रिसर्च पेपर, है ना? बस हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो क्वांटिटिव रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटिव रिसर्च मीन दिस रिसर्च बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल डाटा एंड स्टैटिक्स, है ना? और क्वालिटी रिसर्च क्या होती है? दिस रिसर्च बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस एंड इंटरप्रिटेशंस, ठीक है, ऑफन यूज द मेथड लाइक द इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड टेक्स्ट एनालिसिस। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, और क्वांटिटेटिव जहाँ जिसमें हमें नंबर्स हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि वाई वी यूज द एआई टूल फॉर रिसर्च। तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है ना? इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल एआई लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, एआई टूल्स कैन हेल्प द रिसर्चर टू फाइंड द and organize the relevant literature and identify the key trends and pattern.
ठीक है। दूसरा क्या है, डेटा एनालिसिस। AI tool can help the researcher to analyze the large and complex data set and to identify a pattern and insight that would be difficult or impossible to find manually ना। हाइपोथेसिस जनरेशंस, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड साइंटिफिक राइटिंग, जो भी जिस तरह की साइंटिफिक राइटिंग है, और कोई मैनेजमेंट में कर रहा है, कोई आर्ट्स में कर रहा है, कोई कॉमर्स में कर रहा है। तो अब ये इसलिए क्या था, द इम्पोर्टेंस ऑफ द AI टूल रिसर्च, वो इसलिए जरूरत है कि ये जितने भी हमारे पास पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स में काम करने के लिए AI टूल क्या करता है, AI टूल आपके काम को फास्ट करता है ना। तो इसलिए हम AI टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब दिस इज अ रिसर्च विजुअलाइजेशन। बेसिकली दिस इज द पिक्चर्स, देयर इज अ सम पीपल्स टचिंग द एलिफेंट, और देयर इज अ वन इन द मिडल ऑफ द दिस पिक्चर्स, वन एलिफेंट इज हियर, है ना। तो कैन यू एनीवन गेस कि एग्जैक्टली व्हाट इज दिस? क्या कोई इसको बता सकता है कि एग्जैक्टली क्या है, क्या एक्सप्लेनेशंस है, क्या इसमें हम यू कैन you can you can think about the these pictures, है ना। what is your visualizations, है ना। तो yes, yes, tell me, can you can you tell me exactly what is in this pictures? किसी के दिमाग में कोई आइडिया, किसी के माइंड में कोई आइडिया कि एग्जैक्टली व्हाट इज दिस पिक्चर्स? सर ये शो कर रहा है कि जो भी डिफरेंट पार्ट्स को देख रहा है वो उसका अलग इंटरप्रिटेशन बता रहा है। होलिस्टिकली कोई कोई भी इसको नहीं देख पा रहा है। जी 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 जी। तो और एनीवन, एनीवन एल्स? Sir, it shows the different aspects of view aspects of different persons on a particular thing. Yeah, exactly, exactly. This is a right. Actually, uh, this pictures shown here. Okay, there is a five. There is a six people in this. This pictures. कोई 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 मतलब कोई देख नहीं सकता है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है ना। और तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर द टचिंग द एलिफेंट, और एलिफेंट को टच करके वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस। कोई कह रहा है कि ये दिस इज अ बॉल, कोई कह रहा है कि दिस दिस इज अ शार्क, कोई कह रहा है दिस इज ए मतलब जो अपने अकॉर्डिंग दे आर यूजिंग, वो टच कर रहे हैं ना, फील कर रहे हैं ना, जो फील कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट इज ए फन, है ना। एक ने कहा इट इज ए फन, एक ने कहा इट इज ए स्पियर्स, और द अनदर वन इज कॉल्ड इट इज ए स्नैक। उसने अगर अगर उसने उसके हाथी के सूंड को छुआया तो इट इज ए स्नैक, उसे उसे एक लाइक ए स्नैक लग रहा है ना। और कोई उसके पैर को टच कर रहा है तो लग रहा है इट इज ए ट्री, है ना। कोई उसके पेट को अगर कर रहा है तो कह रहा है इट इज ए वॉल है। और कोई इट इज ए, कोई उसकी पूंछ को अगर पकड़ रहा है तो वो कह रहा है इट इज ए रॉक। तो देयर इज ए मेन थिंग इन इन दिस पोस्टर के देयर इज ए वन थिंग, है ना। एक कोई चीज है, और उस चीज को कि जितने पांच छह लोग हैं, पांच छह लोग का अलग अलग, यानी द पीपल्स हैव द डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट आइडिया ऑन दिस पिक्चर्स, है ना। तो वही रिसर्च, रिसर्च क्या है, यही रिसर्च होती है कि कोई एक टॉपिक है आपके पास, कोई एक चीज है, उसको आपका नजरिया, आपका सोचने समझने की शक्ति, आपकी जो माइंड है, वो क्या कहता है, दिस इज ए research. Actually, this is the research visualization. The next picture is also very interesting. You can find out exactly what is in these pictures. So, can you identify? Can you make us some difference in these pictures? What is your opinion? Anyone, can you tell me? क्या दिख रहा है इस पिक्चर्स में? Yes. Anyone? Anyone can tell me what is in these pictures? Something is दिख रहा है। different, है ना? Yes. सोनू निगम का प्रोफेशन गाना गाना है और लेकिन साथ में बैट है, और सचिन तेंदुलकर का प्रोफेशन बैटिंग करना है लेकिन साथ माइक है। तो डिफरेंस दिख रहा है।
तो डिफरेंस क्या है, उन्होंने मतलब ये आइडेंटिफाई करा, वेन एवर यू आर यू आर डूइंग द रिसर्च, वेन एवर आपका जो रास्ता है वो रास्ता गलत है, पता चला कि आपने आपने सोनू निगम पर रिसर्च कर रहे हैं, और सोनू निगम पर रिसर्च क्या कर रहे हैं, सोनू निगम के बारे में आप यू आर राइटिंग सोनू निगम इज द बैट्समैन, और मतलब वो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर पर कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर इज द सिंगर और वो गाना अच्छा गाते हैं। तो ये क्या होगा, ये क्या होता है ना, तब जब आप रिसर्च करते हैं ना, तो ये सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका राइट पैथ क्या है रिसर्च के लिए, रिसर्च का फोकस क्या है। तो कहने का मतलब ये पिक्चर्स जो विजुलाइज है, इस पिक्चर का मतलब है कि आपका अपना एक मोटिव होना चाहिए, और मोटिव जो होना चाहिए उस मोटिव के अकॉर्डिंग आप क्या करें, अपनी रिसर्च को करें। यही रिसर्च का मेन फंडा है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है इसमें। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, अब देन इन द टुडे वी विल लर्न अबाउट, अब तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आते हैं ना। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, हम लोग जो अपना कोर्स कर रहे हैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आते हैं, है ना। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। तो एक्चुअली दिस इज a main thing when we are discussing about the Canva AI. तो there is a the academic research use of the मैजिक राइटर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कि जो मैजिक राइटर है, किसका मैजिक राइटर है। जैसे कल हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने किया था, और उस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बहुत सारी चीजें डाली, जानी थी हैं। उसमें एक चीज जानी थी, वो था हमारा ये डॉग डॉग है ना, कि डॉग कैसे है। तो उस डॉग के बारे में हमने जाना था। तो उस डॉग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। राइटिंग द रिसर्च पेपर एंड रिसर्च कंटेंट, कैसे ना, क्रिएट आउटलाइन, राइट कंटेंट, किस तरह से हम लोग इस पर कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा ठीक है, और इसके अलावा हम लोग हाँ, समराइजिंग द रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर को कैसे समराइज कर सकते हैं, एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और शॉर्ट क्लियर समरी ऑफ द पोस्टर प्रेजेंटेशंस और रिपोर्ट्स, राइटिंग सपोर्ट, करेक्ट ग्रामर, स्पेलिंग एंड इम्प्रूव एकेडमिक टोन्स, वो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं कैनवा में, है ना। जैसे तो ये सारी चीजें आपको लगता होगा कि यार ये सारी चीजें तो मैं दूसरी चीजों में भी कर लूंगा, जो एआई टूल्स है उसमें भी कर लूंगा, तो फिर मुझे कैनवा की क्यों जरूरत है। कैनवा की इसलिए जरूरत है, कैनवा आपको एक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी वैरायटीज दे रहा है। ठीक है, वो आपको टेबल क्रिएशन दे रहा है, आपको चार्ट क्रिएशन दे रहा है, पोस्टर क्रिएशन दे रहा है, पीपीटी क्रिएशन दे रहा है, और बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना। तो 5 पॉइंट ये हैं, और 5 पॉइंट क्या है, 5 पॉइंट हमारा ड्राफ्टिंग रिसर्च पोस्टर एंड फ्लायर, है ना, क्रिएटिंग एकेडमिक प्रेजेंटेशन और रिसर्च कम्युनिकेशन फॉर द नॉन स्पेशलिस्ट, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग आज सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले अपना जो हमारा कैनवा का लॉगिन करने के बारे में सब लोग, आई थिंक एवरीवन नो अबाउट द हाउ टू लॉग इन द कैनवा, है ना, कल जब हम लोगों ने सीखा था। ठीक है ना। ठीक है, कल हमने सीखा था। तो कैनवा पे आते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कैनवा के होम पर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने खोला, खोलने के बाद हमें ज़रूरत किस चीज़ की है। अब हमें ये सारी चीज़ लिखने की, जब हम लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं तो हमें वर्ड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, हमारा एक डॉक्यूमेंट का फीचर्स है। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट के फीचर्स को करते हैं। ठीक है ना।
डॉक्यूमेंट के फीचर्स को कर दिया, और डॉक्यूमेंट के फीचर्स को कल जो हमने बताया था कि किस तरह से है, ठीक है, कि सपोज दैट हमारे पास एक टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है ना, कोई भी टॉपिक आप बता सकते हो। अगर इफ यू हैव टॉपिक इन योर माइंड यू कैन राइट हियर, है ना, कोई भी टॉपिक बता सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो हम लोग एक टॉपिक ले लेते हैं। वो टॉपिक क्या है हमारे पास है, टॉपिक टॉपिक है हमारे पास, उसका क्या है, ये दूसरा टॉपिक है, हम लोग ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, टॉपिक का नाम हमारा क्या है, टॉपिक का नाम है हमारा, ठीक है, ये हमारी टॉपिक हो गया, इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मिंग रिसर्च इंडस्ट्री एंड सोसाइटी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक पर एक रिसर्च पेपर लिखने वाले हैं, या कोई रिसर्च काम करने वाले हैं। कि रिसर्च पेपर हम लोग जैसे हमारे पास कोई टॉपिक है और हम एआई टूल्स की मदद से, एआई टूल्स मतलब अब कैनवा की मदद से हम लोग कैसे एक जो हम लोग लिखना चाहते हैं, एक रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, और उस रिसर्च पेपर में टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं हम लोग, उसमें ग्राफ इंसर्ट करना चाहते हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें, कोड इंसर्ट करना चाहते हैं, रेफरेंसेस इंसर्ट करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हम लोग वो कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस टॉपिक की एक आउटलाइन क्रिएट करेंगे। आउटलाइन कैसे क्रिएट करेंगे, आपने एक टॉपिक लिख दिया, यहाँ पर जो आपको एक ये पेन जैसा निशान दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे, और इस पे क्लिक करने के ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट, यानी यानी इस जो टेक्स्ट आपने यहाँ पर दिया है, इस टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं आप, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, फिक्स स्पेलिंग है ना, कंटिन्यू स्पेलिंग का हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, मोर फन कर सकते हैं, मोर नॉर्मल कर सकते हैं, तो चेंज द वॉइस, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट पे जाते हैं, और इससे ये कहते हैं आई वॉन्ट टू राइट ए रिसर्च पेपर, ठीक है, कैन यू suggest me suggest me our paper generate outline, ठीक है, और भी किसी भी रिसर्च करने से पहले उसका तो आउटलाइन आप बनाएंगे ना। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, हमने इसका एक आउटलाइन क्या कर दिया, क्रिएट करा दिया, ठीक है ना। उससे कहा कि एक आउटलाइन क्रिएट, तो अब ये आउटलाइन यहाँ पर क्या कर दिया, एक रिसर्च पेपर का एक आउटलाइन यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ठीक है। और रिसर्च पेपर किस पर है, उसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मिंग रिसर्च इंडस्ट्री एंड सोसाइटी, ठीक है ना। तो अब ये कर दिया एक आपका एक रिसर्च पेपर, यहाँ पर उसने क्या कर दिया, एक रिसर्च पेपर की आउटलाइन यहाँ पर क्रिएट कर दी गई। तो जब आउटलाइन क्रिएट कर दी गई है तो आउटलाइन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट ए, क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट द कंटेंट, है ना। कंटेंट कैसे लिख सकते हैं, कंटेंट का भी वही आइडिया है। कैसे, सबसे पहले आपने यहाँ पर डिफिनेशन लिखा है, डिफिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर डिफिनेशन पे आपको सेलेक्ट किया, और यहाँ पर आपने ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट पे किया, और टेक्स्ट के लिए explain this section in details and डिटेल्स, ठीक, इतने ही लिख देते हैं आप, ठीक है। और अब आपको करना है कि इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये चाहते हैं कि इसको मैं एक पार्टिकुलर मैं इसको मैं एक पार्टिकुलर नंबर मतलब वर्ड्स में लिखवाना चाहता हूँ, जैसे कि 200 आपने लिखना 250 वर्ड्स, ठीक है ना। तो अब ये क्या कर देगा आपको, ये जो एआई टूल है इसकी मदद से आप डेफिनेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसके डेफिनेशंस लिखवा सकते हैं, ठीक है ना। अब डेफिनेशंस लिखवा दिए आपने,
है ना। अब ये सारी डेफिनेशंस आ गई, है ना। नैरो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द ब्रांच ऑफ द कंप्यूटर साइंस फोकस, ठीक है ना, ये सारी चीजें इसमें आ गई, है ना, डेफिनेशंस आ गई, है ना। ओके, अब ये डेफिनेशंस आ गई, ये सारी चीज आपने यहाँ पर लिखवा ली यहाँ पर इससे, ठीक है। अब वो आपको लग रहा है कि यार ये तो डेफिनेशंस तो इसमें दी नहीं है ना। अब इसमें क्या है, इसमें डेफिनेशंस तो दी नहीं है, इसमें तो बस सारा इन्होंने एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर दिया एआई के बारे में, ठीक है ना। तो अब ये आप क्या कर सकते हैं, यू कैन इंटर हियर, और यहाँ पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आप यहाँ मैजिक राइटर पे जाएंगे और इससे ये कह दीजिए कि राइट डेफिनेशन एंड मेंशन हियर ऑथर नेम विथ रेफरेंस, ठीक है। तो ये क्या कर देगा आपको एक, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, ऑन द ऑथराइज डेफिनेशन ऑफ द प्रोवाइड द स्मार्ट जॉन, ये सारे राइटर्स के अकॉर्डिंग क्या कर दिया उन्होंने, डेफिनेशंस आपको प्रोवाइड कर दी, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या है, डेफिनेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो डेफिनेशंस आप चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट, कंप्रेस एआई, जनरेटिव एआई, ठीक है ना, वो सारी चीजों को आपको यहाँ पर ये कर दिया। ये ऊपर का पैराग्राफ आप यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ पर ये, ठीक है ना। अब जैसे कि, अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि यहाँ का जो पैटर्न है ना, यहाँ का जो पैटर्न है, आपको एकदम लग रहा है कि बहुत सारा यहाँ पर गैप है। गैप क्या है, टेक्स्ट में गैप है। तो आप यहाँ को क्या कर सकते हैं, इसको सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ टूल्स दिए गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो टूल्स दिया गया है एडवांस सेटिंग का, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसका तो लाइन स्पेसिंग है वो कम कर देना। जब लाइन स्पेसिंग कम कर देंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, लाइन स्पेसिंग कम कर देंगे तो इसकी जो इतनी आपको स्पेस दिख रही थी बिटवीन द लाइन, वो क्या हो जाएगी, वो सारी स्पेस खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज को, अब जैसे कि यस, इसका फॉन्ट क्या है, इसका फॉन्ट 12 है, इसका फॉन्ट क्या है, इसका फॉन्ट भी 12 है, लेकिन फॉन्ट तो 12 है, लेकिन यहाँ पर इसका जो फॉन्ट फॉन्ट है, जैसे यहाँ पर कैनवास सन्स फॉन्ट है, और यहाँ पर कौन सा फॉन्ट है, यहाँ पर फॉन्ट एक्सर फॉन्ट है, ठीक है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा मुझे लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये डिफरेंस है, यहाँ पर जो फॉन्ट है हमारा, वो यहाँ पर हमने ये वाला फॉन्ट यूज किया है, ठीक है, एक्सर। लेकिन यहाँ पर जब हमने उसको जनरेट किया, जनरेट करने के बाद उसने यहाँ पर कौन कौन सा फॉन्ट हमारा है, यहाँ पर ये वाला कैनवा सेंस, क्या, ठीक है, ये वाला फॉन्ट दिया उसने, ठीक है ना। तो जब ये वाला फॉन्ट दिया है, तो इस फॉन्ट को हमें क्या करना होगा, ये जो फॉन्ट है, इस फॉन्ट को हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। चेंज कैसे करना होगा, चेंज हमें इससे करना होगा कि यहाँ से हम लोग फॉन्ट का जो भी हमारा फॉन्ट है, ठीक है, अब जो भी हमारा फॉन्ट है यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, इस फॉन्ट, ये बहुत सारे, देयर इज अ लॉट ऑफ द फॉन्ट इज हियर, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो हमारा क्या है, एक्सर का हमारा फॉन्ट है, एक्सर फॉन्ट हमने कर दिया, ठीक है। अब बिटवीन द लाइन क्या है, यहाँ पर जो लाइन है, लाइन के बीच की स्पेस क्या है, यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ नंबर्स देखेंगे, 1.75 नंबर्स हमारा, यानी 1.75 जो स्पेस है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ में भी वही यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग एडवांस सेटिंग में गए, और एडवांस सेटिंग में गए, और हमने यहाँ पर कितना था, 1.73, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 1.73 क्या कर देंगे हम, यहाँ पर जो स्पेस है हमारी, 1.1 क्या है, 4 है, ये 1.73 हमने यहाँ पर कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, अब हमारा ये और ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। अच्छा, इसको हम लोग हेडिंग बना देंगे, ठीक है ना। हेडिंग कैसे बना देंगे, यहाँ पर हमने क्लिक किया और इसको यहाँ हेडिंग पर क्लिक कर दिया, ठीक है ना। हेडिंग पे क्लिक कर दिया तो ये क्या हो गई, ये एक हेडिंग क्रिएट हो गई, ठीक है ना। ठीक है, हेडिंग क्रिएट हो गई। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर देंगे, थोड़ी सी बड़ी है ये, इसको हम थोड़ा सा साइज, इसका फॉन्ट साइज कम कर देंगे, ठीक है ना। और इसको किस में कर लेंगे, इसको उसी में हम लोग कर लेंगे जो हमारा फॉन्ट है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हमें इसको थोड़ा सा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी लग रही है इसमें ना।
ठीक है ना। आप ये वाला फॉन्ट भी वैसा है, इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस तरह से हमने फॉन्ट किया, अलाइनमेंट हो गया, सारा सारा अलाइनमेंट हो गया, और पूरा टेक्स्ट टेक्स्ट में ठीक है इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि डेफिनेशंस थी, हमने डेफिनेशंस किया तो हमारे पास ये डेफिनेशन आ गई। ठीक है ना, डेफिनेशन आ गई, तो डेफिनेशन में क्या था, तो डेफिनेशन में क्या था, one of the authoritative definition of the provide the smart J. Russell and Peter Norvig in their book Artificial Intelligence: The Modern Approach. They describe AI as the study of the agent that receive the per परसेप्ट फ्रॉम द इन्वायरमेंटल फॉर्म। ठीक है ना, और वो कहाँ से उन्होंने इसकी रेफरेंस बुक की रेफरेंस दे दिया। ठीक है, कहाँ से ली गई है, इसको आप बाद में वहां पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है, इसी तरह से हम दूसरी चीज जैसे ब्रीफ हेडिंग ऑफ एआई। अब ब्रीफ हेडिंग और एआई के बारे में हम लोग ये जो जैसे वहां पर हमने किया है वैसे ही हम यहाँ पर क्या कर दें, ब्रीफ हेडिंग ऑफ एआई क्या कर दें हम लोग जैसे कि डाल दें ना। इसमें क्या करना है, हमने राइट इन 200 वर्ड्स, ठीक है ना, 150 वर्ड्स। ठीक है ना, 150 वर्ड्स है, 150 वर्ड्स में 150 वर्ड्स में हमने क्या कर दिया इसको, 150 वर्ड्स में हमने इसको राइट कर दिया। ठीक है ना, तो वो ये क्या हो गया, ये राइट हो गया, हमने यहाँ पर किया, ये हिस्ट्री आ गई इसकी। ठीक है ना, हिस्ट्री आ गई, हमने यहाँ से क्या कर दिया इसको, समवन आस्किंग, यस। सर आई वांट टू आस्क दिस कि इसमें जैसे फॉन्ट हम जो ले रहे हैं, फॉन्ट साइज ले रहे हैं, तो जो ऑथेंटिक मानते हैं वो टाइम्स रोमन का मानते हैं जी 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 जी। और ज्यादातर, और तो हम इसको जब प्रिंट आउट कराएंगे तो कुछ डिफरेंस नहीं आने का हाँ तो जैसे। टाइम्स, आप उसी जो फॉन्ट आप चाह रही हैं वो भी फॉन्ट इसमें अवेलेबल है। ये तो मॉडर्न फॉन्ट है मैम, इसलिए मैं बता दूं आपको, अच्छा, ये टाइम्स नहीं में ज्यादातर जैसे थीसिस वगैरह में जो रिकमेंडेशन रहता है वो टाइम्स रोमन और 12 मतलब उसका फॉन्ट साइज ये टाइम्स रिकमेंड करते हैं। ये टाइम्स रोमन कर दिया आपने, ये टाइम्स रोमन आ गया, टाइम्स न्यू रोमन, ये ओके, जो बता रही हैं आप। जी जी जी। तो आप एक्चुअली क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग जो फॉन्ट आपको अवेलेबल है टाइम्स रोमन कर दिया, ये तो सारा। एक तरह से सर जैसे जैसे हम वर्ड में टाइपिंग वगैरह करते हैं, सारी सेटिंग करते हैं, वो सब इसमें एज इट इज यहाँ पे हम कर लेंगे, कोई इसमें तो दिक्कत नहीं है। इसमें तो मैम, और जो वर्ड है ना, वर्ड से ज्यादा एडवांस फीचर्स है इसमें, उससे बहुत ज्यादा ओके, एडवांस फीचर है मैम। मतलब हमें सब कुछ यही कर पाएंगे, हमें वर्ड में जाने की जरूरत ही यस नहीं है फिर यस, बिल्कुल। वर्ड में आपको जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यही है, सारी चीज यहीं से हो जाएगी। ठीक है मैम, अच्छा, ये ओके। ओके सर। अब इस अच्छा तरह सर, से एक चीज जैसे बीच में कुछ चीजें ये भी आई थी कि मतलब जो थीसिस है ना, ये एआई जनरेटेड हो रही है, चैट जीपीटी से राइट कर रहे हैं, तो कैंसिल हो सकती हैं, तो वो अभी या अभी रिसर्च एक्चुअली क्या मैम, पेपर मतलब। देखिए मैम, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक होता हाँ है प्लेजरिज्म, ठीक है ना, और जी, एक होता है एआई डिडक्शंस। तो अभी हाँ क्या होता है कि जब आप एआई से कंटेंट लेते हैं ना, तो एआई से हाँ, कंटेंट लेते हैं तो वो कंटेंट ना बहुत सारा कंटेंट होता है प्लेजरिज्म की, उसमें उसमें नहीं आता है, कैटेगरी में नहीं आ रहा है वो, उसमें प्लेजरिज्म नहीं। अच्छा, जैसे कि आपने एक थीसिस लिखी या एक रिसर्च पेपर लिखा, और वो रिसर्च पेपर को आपने एआई की मदद से, हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ना, इस तरह से अगर हम्म, एआई की मदद से कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, और रिसर्च पेपर को आपने चेक किया टर्निटिन या कोई भी जो प्लेजरिज्म टूल्स हैं उस पर चेक किया, और उसमें प्लेजरिज्म नहीं है, तो कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज आई है एआई डिटेक्शन। तो क्या होता है, जब आप ये कंटेंट ले रहे हैं ना यहाँ से, तो ये क्या हाँ करता है, खास बात ये होती है इसमें मैम, ये कैनवा जो है ना, कैनवा में खास हाँ। बात ये होती है कि ये आपको एआई डिटेक्शन में भी नहीं आएगा और प्लेजरिंग में भी नहीं आएगा इसका कंटेंट, इसमें खास बात ये होती है। ठीक है, अच्छा, अब ये ये एआई डिटेक्शन में नहीं जाने का हाँ ठीक मतलब। है, तो एआई क्योंकि आपके, ज्यादातर क्या होता है कि जो एआई डिटेक्शन की वजह से कहते हैं कि इसे ह्यूमनाइज करना होता है, कि आपको नहीं थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं, पैराग्राफ चेंज करने होते नहीं हैं। नहीं, तो अभी अभी क्या हुआ है मैम, अभी क्या हुआ है, अभी मतलब यूजीसी की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि अगर आपका कंटेंट एआई एआई कंटेंट है, ठीक है ना, तो वो आपके लिए मतलब हार्मफुल होगा, जिस तरह से प्लेजर में आ जाए 10% अगर प्लेजर में आपकी है और किसी भी रिसर्च पेपर में या थीसिस में है, तो सही है, उससे ज्यादा होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना मैम, हाँ ठीक है नहीं, वो हाँ। तो एज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चलता है ना, जैसे हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में तो ज्यादा भी प्लेगरिज्म अलाउड है, हाँ नहीं, वो लेकिन प्लेजरिज्म प्लेजरिज्म अलाउड नहीं है तो 10%,
लेकिन हाँ उसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई कंटेंट यहाँ से चैट जीपीटी से या कोई एआई टूल से लिया, तो आप क्या कर हाँ सकते हैं, उस कंटेंट का आप साइटेशन दे सकते हैं। अगर आपने उस कंटेंट का साइटेशन यस दिया है तो वो कंटेंट हाँ आपका रेफरेंस दे सकते ऑथेंटिक हैं। कैटेगरी में नहीं आएगा। कोई भी एआई टूल का अगर आप ले लेते हैं और उसका साइटेशन देते हैं, ठीक है, उस साइटेशंस जब मैं मेंशन हो गया मतलब कि आपने इवन इवन हम जैसे कैनवा पे अगर डिजाइन कर रहे हैं तो कैनवा और चैट जीपीटी इनका भी साइटेशन दे दें, मतलब इनका भी रेफरेंस दे दें। कैनवा कैनवा का चाहे तो दे सकते हैं, कैनवा का चाहे नहीं दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैनवा क्योंकि जो भी चीज देता है वो एक्सक्लूसिव होती है और उसकी कॉपीराइट उसका आपको मतलब जो जो मतलब जैसे आप कैनवा, एक दो तरह के होते हैं मैंने बताया, एक फ्री वर्जन होता है और एक पेड वर्जन होता है। जो पेड वर्जन होता है तो पेड वर्जन में जो कंटेंट होता है मोस्टली कंटेंट मतलब एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है। एक अगर आप कोई पोस्टर क्रिएट कर रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है कि उसमें आप देंगे भी ये मैंने कैनवा से लिया है, उसमें जरूरत नहीं है। आपने आप कोई ग्राफ दे रहे हैं तो आप इसमें ये मत कह दिए कि मैंने कैनवा से लिया। भाई क्यों कैनवा से लिया है, आपने कैनवा को आप पेड कर रहे हैं और कैनवा आपको एक्सक्लूसिव अच्छा इमेजेस प्रोवाइड करा रहा है। आपको कैनवा एक्सक्लूसिव इमेजेस ओके प्रोवाइड करा रहा है, वो उसके लिए कैनवा आपसे पैसे ले रहा है। ठीक है मैम, तो ये हाँ सिस्टम है। हाँ हाँ ठीक है मैम, समझ आ गया मैम, आगे बढ़े। जी 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 ठीक ओके है, सर। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसी तरह से एक 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 हम एक अच्छा सा रिसर्च पेपर हम लोग इसमें लिख सकते हैं। और लिखने के बाद आप उस रिसर्च पेपर को रिव्यू कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने सारा कुछ अपने एआई से ही लिख दिया, आपने कहा यार ये बहुत अच्छा है, हम तो 10 मिनट में पूरा रिसर्च पेपर लिख ले रहे हैं। लेकिन नहीं, ये एथिक्स के खिलाफ है। ठीक है ना ये आपकी अपनी इच्छा शक्ति है ना, अपने अंदर की अंतरात्मा है, उसके खिलाफ है कि कोई चीज आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, और रिसर्च पेपर वो टोटली आप एआई की मदद ले सकते हैं। भाई आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा है ना, आपकी समझ में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक वर्ड समझ में आया और आपने एआई से पूछ लिया, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में एक एक वर्ड आया मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक रिसर्च पेपर लिखना है। ठीक है ना, तो आपने एक रिसर्च पेपर लिखना है तो आप क्या कर दो, यहाँ पर इससे पूछ लो कि मुझसे आप यहाँ पर सजेस्ट कर दो, अब इससे आप कर लो। ठीक है ना, सजेस्ट मी हाउ कैन आई हाउ कैन आई रिसर्च ऑन दिस इमर्जिंग इमर्जिंग टॉपिक। अब फील्ड कौन सा है आपका, फील्ड कहते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम लिटरेचर स्टूडेंट्स, और टीचर लिख दो जो भी है, लिटरेचर है। लिटरेचर आपने कहा कि मैं एक लिटरेचर स्टूडेंट हूँ, मैं लिटरेचर है, या फिर आई टीच लिटरेचर। आप कौन सी लिटरेचर है, सफर करो, आपने कहा कि मैं हिंदी लिटरेचर कर रहा हूँ, आई आई टीच द हिंदी लिटरेचर। तो अब देखो वो क्या कर देगा, आपको बहुत सारे टॉपिक देगा, सजेस्ट मी हाउ कैन आई रिसर्च द इमर्जिंग टॉपिक्स। ठीक है ना, टॉपिक आई टीच इन हिंदी। तो अब वो क्या कर देगा, अब आपको बहुत सारे प्रोवाइड सम टाइटल्स, ठीक है ना, तो वो आपको क्या कर देगा, यहाँ पर बहुत सारे टाइटल्स आपको सजेस्ट कर देगा। ठीक है ना, अब देखिए ये चीजें आपको क्या कर दिया, अब उसने ये बता दिया ऊपर कि आपने जो पहले क्वेश्चंस पूछा कि हाँ ये कैसे, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, आपने सबसे पहले पूछा इससे। ठीक है, इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अब आप सबसे पहले आपने क्या पूछा, आपने पहले पूछा कि रिसर्चिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द हिंदी लिटरेचर एजुकेटर। ठीक है, अब उसने ये बता दिया स्टेप बाय स्टेप कंडक्ट योर रिसर्च। अब उन्होंने कहा लिटरेचर रिव्यू, begin or the review the existing literature of AI and application in humanities, identify the key area of the interest, और फिर interdisciplinary approach, ethical consideration and case study। ठीक है ना, उसके बाद उन्होंने कहा suggest research title। अब उन्होंने क्या कर दिया, the role of the AI in the presenting and analyzing the Hindi literature text। ठीक है ना, अब उन्होंने एक
एक टॉपिक दे दिया जिसका नाम लिखा द रोल ऑफ एआई इन द प्रिजर्विंग एंड एनालाइज द हिंदी लिटरेचर टेक्स्ट। तो अब इसमें दिस स्टडी could explore how AI technology are being used to digitalize the preserve analyze the Hindi literature, making it possible accessible and searchable। ठीक है, दूसरा टॉपिक उसने प्रोवाइड कर दिया AI एंड हिंदी लिटरेचर इनहेंसिंग ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना, तो एग्जामिन हाउ AI ड्राइवन ट्रांसलेशंस tools are improving the translation of the Hindi literature into the other language to vice versa and impact of the culture exchange। ठीक है, तो इसी तरह से कहने का मतलब ये कि जो जैसे आपके दिमाग में कोई मतलब अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो द AI टूल्स कैन हेल्प यू। ठीक है, AI टूल्स आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपके दिमाग में कोई एक आउटलाइन, इसमें हमने आउटलाइन क्रिएट की, वो एक आउटलाइन क्रिएट कर दी, इस तरह से यू कैन क्रिएट योर आउटलाइन और उस आउटलाइन के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं ना, काम कर सकते हैं। कुछ कंटेंट आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कुछ कंटेंट आप AI की मदद से ले सकते हैं, कुछ टेबल्स AI की मदद से ले सकते हैं, कुछ ग्राफ AI की मदद से लेते हैं और कुछ अपना भी होगा। ऐसा नहीं है कि टोटली आप डिपेंड ऑन द AI, क्योंकि AI क्या करता है, AI जो है, AI बेसिकली आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ना, वो मशीन जनरेटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना, वो मशीन जनरेटेड इंफॉर्मेशन है। जो डेटा वहां पर अवेलेबल है, जो डेटा अवेलेबल है यहाँ पर इंटरनेट की दुनिया में, वो डेटे को आपको कलेक्ट करके आपके सामने एक फ्रेमवर्क में दे रहा है। ये AI काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप अपने काम को बहुत सारा क्या कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं ना, इजी कर सकते हैं। जब इजी काम हो जाएगा तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, अब ये सारी चीज होगी। अब कैसे रिसर्च पेपर लिखना है, हम लोग बहुत सारे एक एक टॉपिक पे नहीं जाएंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक पे जाएंगे तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा। तो इतनी चीज आपको क्या हो गई होगी, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखिए, अब इसमें इसमें एक चीज और एक फीचर्स और है। वो फीचर क्या है, जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर राइट मैजिक करेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर हमें ऑलरेडी जो हेडिंग से वो दिया। जैसे कि आपने कहा कि मुझे एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना है ना, ठीक है ना, या आपको एक पैराग्राफ जनरेट करना है, या कोई केस स्टडी है। ठीक है, आपने यहाँ पर लिख दिया, आपने किस पे लिख दिया, आपने कहा कि ये जो मेरा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, रोल ऑफ द AI इन प्रिजर्विंग एनालाइज द लिटरेचर। तो इसमें मेरा एक टॉपिक है, इस टॉपिक पे क्या कर दो, इस टॉपिक पे क्या करना है, इस टॉपिक पे ठीक है, इस टॉपिक पे मेरा क्या करना है, एक एक प्रपोजल क्रिएट करना है। ठीक है, क्या करना है, प्रपोजल क्रिएट। अब प्रपोजल क्रिएट किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर उन्होंने एक अब क्रिएटेड प्रपोजल ऑन इतने इतने वर्ड, प्रोजेक्ट प्रपोजल, मार्केटिंग कंपेन, इतना जो भी है। ठीक है, अब फॉलोइंग सेक्शंस, अब ये फॉलोइंग सेक्शन पे नहीं जाना है। अब हमारा जो टॉपिक्स है, हमारा ये टॉप प्रॉम्प्ट है। अब हमारा टॉपिक्स है, क्या टॉपिक्स है, हमारा टॉपिक्स ये है। ठीक है ना, अब हमने कहा इसमें, तो इससे कह दो कि ये आपको क्या कर देगा, फिर आपको यहाँ से जनरेट करके दे देगा। ठीक है ना, क्या प्रपोजल, प्रोजेक्ट प्रपोजल जनरेट करके। तो अब इसने क्या कर दिया, आपको एक प्रोजेक्ट प्रपोजल जनरेट करके दे दिया। और प्रोजेक्ट प्रपोजल में कंपेन ऑब्जेक्ट, टारगेट ऑडियंस, की मैसेज, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन्फ्लुएंस, कम्युनिटी एंगेजमेंट, इंटरेक्शन कंपेन, टाइमलाइन, फेज 1 प्रिपरेशन ऑफ द कंटेंट डेवलपमेंट, मंथ 1, फेज 2 कंप्लेंट लॉन्च, मंथ 2, है ना, फेज 3 मॉनिटरिंग एंगेजमेंट, ठीक है, फेज 4 एवोल्यूशन ऑफ द फीडबैक मंथ। बजट क्या है, द एस्टिमेट बजट होता है ना, एवोल्यूशन मैट्रिक क्या है, वो सारी चीजें उसने एक एक फॉर्मेट जो है ना, वो जो आपने टॉपिक यहाँ पर दिया, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग एक फॉर्मेट आपको क्रिएट करके दे दिया। जब भी आपको कोई रिसर्च प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई रिसर्च पेपर बनाना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज द दिस, मतलब AI टूल्स है ना, बेसिकली बहुत सारे AI टूल्स है, और एक कैनवा इज बहुत ही ज्यादा अच्छा AI टूल्स में माना जाता है। ठीक है ना, ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, और फिर से हमें और जो जो चीज चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिर से हमें कुछ और चाहिए, तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास आइडियाज दिए गए हैं। आइडियाज क्या दिए गए हैं हमारे पास, मैजिक पे आइडिया
आइडिया ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है, जैसे हमने वहां पर डिस्कशन किया था कि आइडिया ब्रेनस्टॉर्म या केस स्टडी, कोई केस स्टडी के बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। किसकी केस स्टडी है? द 1000 वर्ड्स केस स्टडी टाइटल लीडिंग। जब ये हमारे पास टाइटल जो है ना, हम टाइटल को क्या कर देंगे, हम टाइटल को अपना टाइटल यहाँ पर क्रिएट करेंगे और हमारे पास पूरा प्रॉम्प्ट तैयार है। स्ट्रक्चर केस स्टडी विद अ क्लियर सेक्शन सेपरेटेड बाय द क्लियरली फॉर्मेट हेडर, इंट्रोडक्शंस, चैलेंजेस, सॉल्यूशंस, इम्प्लीमेंटेशंस, रिजल्ट एंड कंक्लूजन। तो ये क्या कर देगा आपको, देखो केस स्टडी आपको प्रोवाइड करके दे देगा। क्या कोई केस स्टडी है या नहीं है, इस पे काम हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब उसने सॉल्यूशंस इसके क्या है ना, इम्प्लीमेंटेशंस क्या है, और रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, और कंक्लूजन क्या होगा। तो ये देखिए, ये पूरा आपको क्या कर दिया, ये कहाँ से, द रोल ऑफ द एआई इन प्रिजर्विंग द एनालाइजिंग द हिंदी लिटरेचर टेक्स्ट इन द मॉडर्न डिजिटल एरा, द प्रिजर्विंग एनालाइजेस द, ये सब पूरा चैलेंजेस क्या आएंगे उसके साथ, सॉल्यूशंस क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, डिजिटलाइजेशन, टेक्स्ट एनालिसिस, डेटा मैनेजमेंट, ओवरकम ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिजल्ट क्या उन्होंने द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, मैट्रिक, नंबर ऑफ डिजिटलाइज टेक्स्ट, ठीक है, एक्यूरेसी, ट्रांसलेशन स्पीड, पेज 5। तो ये सारी चीजें उन्होंने क्या कर दिया भाई, सारी चीजें आपको यहाँ पर जो चीज आप चाह रहे हैं वो सारी चीजें आपको अवेलेबल मिल रही है। तो आप क्यों नकल करेंगे भाई, नकल की क्या जरूरत है भाई। एक आइडिया अगर आपके दिमाग में आ गया है, उस आइडिया के अकॉर्डिंग आप अपने ऑन वर्ड्स में, ऑन लैंग्वेज में उस सारी चीजों को लिखिए। आपको क्या हो गया, लेकिन सिर्फ एक आइडिया आ गया, उस एक आइडिया से आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज क्रिएट कर सकते हैं ना, बहुत सारा प्रपोजल बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एकेडमिक के लिए यूज है वो और क्या है, केस स्टडी है, प्रोजेक्ट प्रपोजल है, ब्लॉग है, ये सारी चीजें, बिजनेस प्रपोजल, ये तो खैर आपके लिए नहीं है, सर्वे है, ठीक है ना। आप कोई सर्वे करना है किसी को, क्या सर्वे का कैसे होना है क्या है, तो आप सर्वे पर क्लिक करके पूछ सकते हैं इससे, क्रिएट द 10 क्वेश्चन सर्वे टू गैदर द इनसाइड द ईमेल यूजर्स द हैबिट, दिस सर्वे शुड बी फॉलो द दिस गाइडलाइन, ठीक है ना। तो आप उन्होंने गाइडलाइन आप अपनी डाल दीजिए और सर्वे का नाम दे जो भी आप कराना चाहे, जनरेट कर दीजिए, क्या 10 क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आप 10 है, 100 है, 50, जितने भी क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने 10 क्वेश्चंस को क्या कर दिया, 10 क्वेश्चंस को यहाँ पर उन्होंने दे दिया, ठीक है ना। क्या कर दिया, द यूजेस ऑफ द हैबिट द सर्वे, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, द क्वेश्चंस नंबर 1, ठीक है ना, क्वेश्चंस नंबर 1, द क्वेश्चन टेक्स्ट, हाउ मेनी ईमेल अकाउंट डू यू हैव, है ना, मल्टीपल चॉइस रेस्पॉन्स 1 2 3 4, ठीक है। हाउ ऑफन टू यू चेक योर ईमेल, कब करते हैं, मल्टीपल टाइम करते हैं, मल्टीपल टाइम, डे, ये वो सारी चीजें, एक सर्वे दिया और उन्होंने पूरा एक सर्वे का फॉर्म यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब देखिए इतनी आसानी से सर्वे का फॉर्म क्रिएट हो रहा है। अब सर्वे का फॉर्म जब आप क्रिएट करेंगे तो इसमें प्लेजरिज्म का और एआई डिटेक्शन का कोई मसला तो है नहीं, कि आपको इसमें तो है नहीं कि भाई आपका इसमें एआई डिटेक्शन हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हैं जो एआई और उसमें प्लेजरिज्म की कैटेगरी में नहीं आ रही हैं। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना, सर्वे में। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा यहाँ पर हमें और क्या है, सर्वे है जो हमारे रिसर्चर के लिए है, ठीक है। कोर्स आउटलाइन भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के बारे में लिख सकते हैं, लिंक्डइन आर्टिकल्स है, पॉडकास्ट है, आउट है, ठीक है। और कोर्स आउटलाइन भी हमारे में, कोर्स आउटलाइन क्या है कि कोई कोई कोर्स है आपके बारे में, ठीक है, तो आपके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव 12 वीक हिस्ट्री क्लास सिल्क रोड ऑफ द, जो भी जैसे आप करना चाहते हैं ना, तो वो क्या करता है, कोर्स की भी आपका बता देगा, ठीक है ना। देखिए कोर्स टाइटल, द सिल्क रोड एंड जर्नी ऑफ थ्रू द हिस्ट्री, ठीक है, तो उसने पूरा, है ना, ठीक है, तो पूरा एक क्या कर दिया, एक यहाँ पर क्रिएट कर दिया, क्या क्रिएट कर दिया, एक टेबल क्रिएट कर दिया उन्होंने यहाँ पर, जो सारी चीजें इसमें दे दी गई है, ठीक है। तो अब ये क्या कर दिया, ये पूरा यहाँ से द टाइटल कोर्स का टाइटल द सिल्क रोड ए जर्नी ऑफ थ्रू द, कोर्स डिस्क्रिप्शन क्या है, दिस 12 वीक कोर्स एक्सप्लोर द सिल्क रोड लेजेंडरी ट्रेड, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको उसने बता दिया और सब कुछ दे दिया इसमें, है ना, सब कुछ दे दिया कि किस तरह से मेन थीम क्या है, की कॉन्सेप्ट क्या है, सजेशन रीडिंग क्या है ना, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर उसने प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, अब ये तो हो गया हमारा
टेक्स्ट का कि हम टेक्स्ट को कैसे राइट करते हैं कैनवा की मदद से। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक हमारे पास ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से अब जैसे अब हमने अभी हम क्या मैजिक राइटर के बारे में कर रहे थे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इसमें यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करना है, एक टेबल बनाना है, ठीक है। तो टेबल बनाना है, डिवाइडर बनाना है, ठीक है, पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये जो पेज है ना, एक पेज दिख रहा है, सारा सारा क्या हो रहा है इसमें, एक पेज दिख रहा है ना। अब क्या करना है हमें यहाँ पर क्या करना है, जो भी आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक एक ब्रेक करने के लिए एक ऑप्शन है पेज ब्रेक का। तो ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक हो जाएगा। कहाँ से, जहां से भी मतलब पेज को आप ब्रेक करना है, जैसे कि यहाँ से पेज को ब्रेक करना चाहते हैं तो यहाँ से पेज को आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ब्रेक। ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जहां से भी आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं वो आप पेज को ब्रेक कर दें, ठीक है ना। आप पेज को ब्रेक कर लिया। अब दूसरी चीज क्या है इसमें, दूसरी चीज ये है कि डिजाइन। डिजाइन क्या है, ठीक है, डिजाइन। अब डिजाइन क्या है, जैसे कि कोई भी आप यहाँ पर फोटो डालना चाहते हैं, कोई ग्राफिक्स डालना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक मतलब एक रिसर्च पेपर बनाना है, उसको अच्छे से करना चाहते हैं तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर, या एक कोई टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं आप एक अपना प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, अपना सीवी बनाना चाहते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कोई भी ग्राफिक भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक कैसे कैसे होगा, फिर से मैं बता दूं आपको, ठीक है। फिर से हम लोग यहाँ गए, प्लस के निशान पे गए, ठीक है, प्लस के निशान पे गए, डिजाइन में आया यहाँ पर, ठीक है ना, इसमें डिजाइन में आया। और डिजाइन में आने के बाद हमने यहाँ पर ये सारे बहुत सारे यहाँ पर डिजाइन है, जैसे कि बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल। नवरात्रि का कोई भाई नवरात्रि का चाहिए आपको, या किसी और का नवरात्रि, इंस्टाग्राम को पूजा, दुर्गा पूजा का चाहिए आपको, है ना, किसी तरह के ये चाहिए, वो भी सारी चीजें इसमें अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, हमने कोई भी टेम्पलेट यहाँ से ले लिया, जैसे कि कोई कोई भी हम एक प्रपोजल कर रहा है ना, ठीक है। प्रपोजल क्या है हमारा, प्रोजेक्ट प्रपोजल, ठीक है। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन वो जो हमारा साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो डिजाइन यहाँ जैसे किसी भी आपको मतलब कुछ डिजाइन करना है, कुछ करना है, तो यहाँ से आप यहाँ से कुछ भी अपना एक पोस्टर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी पोस्टर ले सकते हैं और पोस्टर पे आपने क्लिक किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोफाइल है, मैं दिखा रहा हूँ, ये है, कुछ है, तो आप यहाँ से इसका पोस्टर क्या कर सकते हैं, यू कैन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक इंसर्ट हो गया, यहाँ पर पोस्टर क्या हो गया, पोस्टर इंसर्ट हो गया। आप जो भी पोस्टर है आप यहाँ पर करना चाहे वो यहाँ पर हो जाए। और इसके अलावा यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट कहाँ होगा, एडिट यहाँ नहीं होगा, एडिट वहाँ होगा, कहाँ पर होगा, जहाँ से आपने लिया है, ठीक है। आपने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पोस्टर आया, पोस्टर आके यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर करना चाहते हैं आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या एडिट कर सकते हैं, हमने यहाँ पर वो जो लिया था टॉपिक, वो आपने टॉपिक यहाँ पर डाल दिया, ठीक है ना। टॉपिक डाल दिया, जो भी आप डालना चाहते हैं, जो भी करना है, इस तरह से ये हो जाएगा। ये जो जो पेजेस, ये यहाँ से जो इमेजेस हैं, इमेजेस भी यहाँ से बदली जा सकती है ना, सब कुछ बदला जा सकता है इसमें, यानी जैसे भी अगर आप चाहें ये एडिटेबल है सारी, ठीक है ना। यहाँ से जो भी चाहें आप बच सकते हैं, या ये यहाँ रख सकते हैं, या यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरा कोई ये एलिमेंट है, एलिमेंट में जाके ना यहाँ क्या कर सकते हैं, दूसरा भी, जैसे कि आप अपने एआई के बारे में कुछ, एआई का एक एक फोटो या कुछ भी फ्रेम में लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से फोटो है, तो आपने ये क्या कर लिया, एक एआई का भी फोटो लगा दिया आपने, अगर आप चाहो तो इसको एक एआई का फोटो लगा दिया आपने, चेंज कर लिया, ठीक है ना, ठीक है, चेंज कर लिया, इसके कलर को थोड़ा सा और यहाँ से क्या कर लिया, यहाँ से ऐसा कर लिया ताकि वो विजिबल हो, है ना, विजिबल हो, ठीक है, ठीक है, तो विजिबल हो।
तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जैसे ये बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा है तो आपने यहाँ पर जाके क्या किया, जो जो एलिमेंट है, एलिमेंट में जाके आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एक टूल है, टूल पर गए आप, टूल पर जाने के बाद यहाँ पर एक शेप ले लिया, ठीक है ना। तो आपने शेप ले लिया, एक शेप कैसे ले लिया, एक ऐसा शेप ले लिया, और इस शेप में जाके किसको कर दिया, वो हम इमेज वाले में जब करेंगे तो ये सारी चीज़ें बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये कर लिया, और यहाँ पर अपना क्या कर दिया, अपना एक टाइटल लिख दिया। अब ये टाइटल क्या है, अंदर जा रहा है, तो यह पोजीशन का निशान है, पोजीशन पे गए आप, पोजीशन पर जाने के बाद आपको क्या करना है, फ्रंट पोजीशन करना है। फ्रंट पोजीशन पर जब जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अब इसको क्या कर दिया, इसको हमने यहाँ से कलर चेंज कर दिया। कलर क्या चेंज कर दिया हमने, इसके इसके फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, ठीक है। वाइट ले लो, जो भी आपको समझ समझ रहे हैं, ठीक है ना। आपने वाइट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये वाइट कलर ले लिया आपने यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी हम लोग एक क्रिएट कर सकते हैं अपने रिसर्च पेपर के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप चाह रहे हैं तो ये रखें, नहीं चाह रहे हैं तो यहाँ से फिर हम लोग जब एआई की बात करें तो एआई से रिलेटेड हम बहुत सारे ग्राफिक्स भी इसमें अवेलेबल है, हम उन ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे वहाँ पर ग्राफिक्स का इस्तेमाल था, अब यहाँ पर एआई से रिलेटेड बहुत सारे ग्राफिक्स है, हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल कर लिया है हमने, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर लिया। अब इसका इस्तेमाल कर लिया, अब ये क्या है, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से फ्लिप कर दिया, ठीक है। फ्लिप कैसे कर दिया, हॉरिजॉन्टल, जब हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दिया तो ये क्या हो गया, इनका चेहरा बदल गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम कोई भी अपना यहाँ पर कोई भी कुछ कर सकते हैं, यहाँ अपने डिजाइन कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमने सेव किया, और सेव करने के बाद जो क्या होगा, वो जो डिजाइन आपने वहां पर क्रिएट किया है वो डिजाइन आपका आपके इसमें पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और इसमें पहुंचने के बाद ये फिर एडिटेबल नहीं होगा, आपको डबल क्लिक यहाँ करने का पड़ेगा, फिर ये एडिट होगी, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ठीक है ना। अब दूसरी चीज क्या है, अब दूसरी चीज हम इसमें में स्क्रॉलेबल डिजाइन, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। तो ये स्क्रॉलेबल डिजाइन क्या है, कि ये डिजाइन जो होगा वो आपके जो पेज है, पूरे पेज पर आपको क्या होगा, स्क्रॉलेबल स्क्रॉल करेगा, ठीक है ना। स्क्रॉल मतलब जो भी स्क्रॉल करेगा ना, कहने का मतलब स्क्रॉलेबल डिजाइन, ये आप ये आपके पेज पर क्या कर देगा, स्क्रॉल कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है। आप दूसरी चीज़ हमारी क्या है, ये नया फीचर आया है, ठीक है, थोड़ा समझना पड़ेगा इस फीचर को अच्छे से। उसके बाद हेडिंग के बारे में हम लोग क्या, जो हेडिंग जो हम लोग यूज़ करते हैं, सब हेडिंग क्या है, ठीक है ना। हेडिंग यूज़ जब किसी भी चीज़ में हम लोग हेडिंग देते हैं, यहाँ पर हेडिंग कर लिया और यहाँ पर हेडिंग लिख दी, जो भी लिखना है, ठीक है ना। ये हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गई, हेडिंग हो गई। यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ से हेडिंग 2 और हेडिंग 1, ठीक है ना। हेडिंग 1, हेडिंग 1 को आपने क्या कर दिया, हेडिंग 1 को आपने यहाँ से क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, ठीक है। इसका साइज आप क्या कर सकते हैं, साइज अपने अकॉर्डिंग इसको कम कर सकते हैं, 15 साइज कर दिया आपने, ठीक है ना, 15 साइज कर दिया, ठीक है ना। अब क्या है, अब दूसरा क्या है, अब यहाँ पर क्या है, ये सब हेडिंग, ठीक, सब हेडिंग क्या है, सब हेडिंग जो भी आप डालना चाहो सब हेडिंग हो गया, ठीक है ना। सब हेडिंग के बाद क्या है, सब हेडिंग के बाद क्या है, यहाँ पर क्या है, बॉडी, ठीक है ना। जो बॉडी आती है ना, सब हेडिंग के बाद बॉडी है, और जो भी आप कर सकते हैं यहाँ बॉडी में राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। बॉडी में आप कर सकते हैं, ठीक है ना। है, बॉडी क्या है, जैसे हमने ऊपर से कोई टेक्स्ट लिया, ये क्या है, ये बॉडी का टेक्स्ट है ना। ये क्या है, हमारा बॉडी का टेक्स्ट है, तो हमने यहाँ पे बॉडी का कर लिया। तो इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने उसको फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है, बॉडी का टेक्स्ट आ गया, तो अभी हेडिंग, सब हेडिंग, ये ये बॉडी का टेक्स्ट आ गया, ओके। अब दूसरा क्या है इसमें, अब दूसरा क्या और क्या है, ठीक है। अब हमारा बॉडी, अब ये टेबल, ठीक है ना, टेबल होती है ना, टेबल हम जो क्रिएट करते हैं, अब जो जो भी टेबल आप क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब जितने भी कॉलम की टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, आप टेबल क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से, ठीक है,
यहाँ से जितने भी कॉलम की आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, आप जितने भी कॉलम की टेबल क्रिएट करना है, जैसे वहां पर टेबल का यूज होता है वैसे ही यहाँ पर भी टेबल का ही है, ठीक है। जो भी आप बढ़ना चाहते हैं, जो भी अमाउंट, जो भी चीज आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। टेबल के से यहाँ से क्या है, ये जो बिंदी दिखाई दे रही है, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, देखिए यहाँ से इसको टेबल को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, टेबल को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट रो रो है, ऐड टेबल, टेबल को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी देखो आपको ये निशान दिख रहे होंगे ना, 3। तो इसमें जाके क्या करना है, इसमें जाके भी क्या करना है, पेस्ट, डिलीट, मर्ज सेल। अगर आपको चल करना है कि पूछ मुझे सेल को मर्ज करना है, ठीक है, तो आप सेल को भी मर्ज कर सकते हैं इसके जरिए, ठीक है। जिस तरह से आप कंफर्टेबल समझेंगे कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें ना रेडीमेड मतलब जो टेबल भी अवेलेबल होती है, ठीक है ना। रेडीमेड टेबल अवेलेबल क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एलिमेंट पे गए, एलिमेंट में जाने के बाद आपने यहाँ पर क्या किया, ये टेबल यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, टेबल लिख दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत सारी इस तरह की टेबल आपको आ जाएगी, ठीक है ना, इस तरह की टेबल आ जाएंगी, ठीक है ना। आप जैसे कि मतलब चाह रहे हैं कि मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, मुझे ऊपर कलर वगैरह नहीं करना पड़ा, तो यहाँ से आप कोई सी भी टेबल को इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर वाली टेबल का, ठीक है ना। बहुत सारी टेबल्स अवेलेबल है, या किसी भी टेबल्स का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अभी हमने टेबल की बात कर ली, जो अकॉर्डिंग टू योर नीड टेबल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये प्लस पे फिर से गए और हमने यहाँ पर क्या किया, अब हमने यहाँ पर शीट कौन सी है ये, जिस तरह से हम एक्सेल शीट की बात कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर ये शीट है, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर शीट पे क्रिएट किया, और शीट क्या है, वो हमारी जो शीट आ गई, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारी और रेडीमेड शीट भी है, जैसे कि यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर ये जो बहुत सारी डेटा की शीट है, हम इन शीट को यहाँ से किसी किसी भी शीट को हम मतलब यहाँ पर ले लेते हैं। ये तो रेडीमेड है, वरना अब आपको बनाना पड़ेगी इस पे, और आप बना भी सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से कोई भी एक हमने यहाँ से शीट उठा ली, और शीट उठाने के हिसाब से अपने इसको डिज़ाइन, एक्चुअली यहाँ पर रेडीमेड है इसलिए आ गया, यहाँ सिंपल वाला डिज़ाइन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, अपने अपने इसमें अपना जो भी चीज़ है, मतलब जो भी आपका आंकड़ा है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी चीज क्या है, और क्या है, और मैं इसमें बता दें आपको, ठीक है। शीट होगा, डिवाइडर हो गया, डिवाइडर मतलब ये एक लाइन खींच जाएगी, ये डिवाइडर हो गया, ठीक है ना, डिवाइडर हो गया इसमें, ठीक है, डिवाइडर हो गया। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा पेज ब्रेक के बारे में मैंने बता दिया आपको, ठीक है, पेज ब्रेक हो गया ये, ठीक है। और इसके साथ है, देखिए, पेज ब्रेक, चेकलिस्ट जो भी है, मतलब आपको होती है चेकलिस्ट जो होती है ना, ठीक है ना, ठीक है, चेकलिस्ट होती है, जिस तरह से जो भी आपके पॉइंट हो उसमें चेकलिस्ट आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। चेकलिस्ट के अलावा चेकलिस्ट के अलावा बुलेट लिस्ट, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं आप, बुलेट जो है ना, बुलेट होती है, बुलेट बुलेट लिस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपके पास कॉलम्स है ना, और यू कैन कॉलम्स है ना, 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, जैसे कि 3 कॉलम से डिवाइड कर दिए ना, तो ये क्या होगा, 3 कॉलम से भी डिवाइड हो गया, ठीक है ना। 1 2 3 3 कॉलम हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है ना। ये पेज क्या होगा, 3 कॉलम में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। और क्या है इसमें, ठीक है, कॉलम है, यहाँ पर कॉलम दिया, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, ठीक है। और यहाँ पर जो कोटेशंस देते हैं ना हम लोग, जैसे कि कोई कोटेशन देना है, कोई भी कोटेशंस हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर है ना, कोई कोटेशंस भी हम लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा देखिए, ये कोटेशंस हो गया, ये हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, पाई चार्ट, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब देखिए, अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है रिसर्च में डेटा, ठीक है ना, डेटा का विजुअलाइजेशन। तो कैनवा क्या कर रहा है, कैनवा आपके डेटा को विजुअलाइज कर रहा है, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हमने यहाँ से एक एक टेबल ले लेते हैं हम यहाँ कहीं से, देखिए हमारे पास है, सिंपल, हाँ हमारे पास है, ये हम एक,
ठीक है, हमने ये यहाँ से क्या किया, एक यहाँ पर एक टेबल हमने यहाँ से ले ली, ठीक है ना, टेबल ले ली, ठीक है ना। अब इस टेबल को हमने ऐसे मतलब कॉपी पेस्ट किया है। अब हम लोगों को इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो हमने यहाँ पर गए और यहाँ पर करने के बाद हमारे यहाँ पर बहुत सारे ग्राफ का कॉलम्स है, जैसे कि हमारे यहाँ पर देखिए पाई चार्ट, हम बार चार्ट पाई चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो पाई चार्ट हमने क्रिएट किया, और पाई चार्ट क्रिएट करने के बाद, ठीक है ना, तो ये हो गया, पाई चार्ट बन गया है। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये पाई चार्ट क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास डेटा है, अब डेटा है पाई चार्ट का, हमने इस पाई चार्ट पे क्लिक किया, ठीक है, पाई चार्ट पे क्लिक किया, तो ये पाई चार्ट पे जो भी जितना भी जो वैल्यूज है ना, वो सारी वैल्यूज यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। अब आप क्या करना है, अगर आपको कोई भी लेना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इस वाले टेबल को नहीं यहाँ से इम्पोर्ट कर, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यू कैन इम्पोर्ट द डेटा फ्रॉम द योर सिस्टम, ठीक है ना। तो हम लोग क्या से यहाँ से इम्पोर्ट डेटा, तो यहाँ पर जब इम्पोर्ट डेटा, जैसे कल मैंने बताया था, तो 2-3 तरह से इम्पोर्ट डेटा होता है। क्या इम्पोर्ट डेटा होता है, जैसे गूगल शीट से इम्पोर्ट डेटा होता है, गूगल हॉटस्पॉट, वर्ल्ड बैंक, और एक्सेल, सीएसबी और टीएसबी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। हमारे पास एक डेटा है, डेटा कौन सा है हमारे पास सैंपल डेटा है, हमने हेल्थ वाले को लिया है यहाँ से, और यहाँ से हमने कर लिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमारे पास ये डेटा, जो डेटा हमने वो एक्सेल शीट से लिया है, वो डेटा आ गया, और डेटा में उसने पाई चार्ट की वैल्यू बता दी। इसका पाई चार्ट का मतलब क्या होता है, पाई चार्ट का मतलब कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन होता है, ठीक है ना। अब ये पाई चार्ट उन्होंने क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। ये डेटा हमारे पास है, जो डेटा हमारे पास ऊपर था अभी टेबल में, वो ये सारा डेटा है, ठीक है ना। अब आप इस पाई चार्ट में दिखाना क्या चाह रहे हो, ठीक है ना, कंट्री दिखाना चाह रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, पॉपुलेशंस। अब जैसे आपने जो डेटा दिया है ना, वो जो वेरिएबल्स है इसमें, जैसे आप कंट्री दिखाना चाह रहे हो, तो कंट्री तो दिखा दिया था आपने, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहे हो आप पॉपुलेशंस दिखाना चाह रहे हो, तो पॉपुलेशंस का दे दिया उसने। आप क्या दिखाना चाह रहे हो, है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिखाना चाहिए, ये दिखाना चाह रहे हो, तो ये दे दिया, है ना। और ये वैक्सीनेशन रेट दिखाना चाह रहे हो, तो वैक्सीनेशन रेट प्रोवाइड कर दिया उसने। या जो भी आप दिखाना चाह रहे हैं, इसका उसने क्या कर दिया, उसने एक परसेंटेज में प्रोवाइड कर दिया, और परसेंटेज के साथ साथ आपको नंबर्स में भी दे दिया, ठीक है। परसेंटेज उसने क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। अब पॉपुलेशन के बारे में हुआ है। अब इसमें क्या है, एग्रीगेटेड, एवरेज, सम, जो भी आपने कहा, जैसे कि आप सम करना चाहते हैं, तो ये सम हो गया, ठीक है ना। अगर आप क्या करना चाहते हैं, इसको काउंट करना चाहते हैं, काउंट में हो गया ये, ठीक है ना। अगर आप इसको मैक्सिमम में मिनिमम में लाना चाहते हैं, वो सारी चीजें, तो वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये किया, ये डेटा टेबल है, ये डेटा टेबल से हम कोई सा भी क्या कर सकते हैं, इसमें ग्राफ चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अब इंपोर्ट डेटा हमने लिया है वहां से, ठीक है ना। अब केसेस, लेवल ऑफ नंबर ऑफ द केसेस, ठीक है ना। अब हम लोग नंबर ऑफ केसेस क्या, कोविड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कोविड के बारे में हमारा कोई नंबर ऑफ, जैसे कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई कोविड के बारे में बात, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जिसके बारे में भी बात करेंगे, वो सारा डेटे के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ग्राफ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। ग्राफ एग्रीगेटेड क्या, जो मैंने बताया वो वहां से आप, ठीक है। अब अब जैसे देखिए, ये एक ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट से ना हम लोग कितना चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। एक चार्ट है, अब यहाँ पर दिया ना, देखिए चार्ट का जो दिया ना ऑप्शन, अगर आप इसको इसको मतलब जैसे कि हमने पाई चार्ट क्रिएट कर दिया, अब इसको आप बार चार्ट में क्रिएट करना चाहते हैं, तो बार चार्ट पे क्लिक करेंगे, तो बार चार्ट का ये जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, ये बार चार्ट में हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इस वाले चार्ट को स्टॉक बार चार्ट करना चाहते हैं, तो स्टॉक बार चार्ट भी हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको रॉ चार्ट करना चाहते हैं, तो रॉ चार्ट भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए रो चार्ट, अब हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक चीज को, हम लोग हमारी एक जो वैल्यूएशन है, वो क्या है, पॉपुलेशंस को कर रहा है। हम लोग किसको कर रहा है, हम लोग पॉपुलेशंस को कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम इसमें दो वेरिएबल जा रहे हैं, जैसे कि हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे कि हम लोग पॉपुलेशंस को कर रहे हैं, और उसके साथ साथ पॉपुलेशंस के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमने हमने सारे लोगों सारा को करना है, हमने सारों पे क्लिक किया, तो इसने सारे जितने भी यहाँ पर जैसे कि कोविड है, वैक्सीनेशन से, ये सबका कुछ क्या हो गया, आ गया। अब यहाँ से क्या कर रहा है, कलर ऑप्शन से दिया, ठीक है ना। तो क्या है, पॉपुलेशंस को नहीं कर रहा है, इसको हमें एज इट रहना देना है, ठीक है ना। कंट्री कलर,
कंट्री कलर ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारा अब इसमें बार चार्ट में क्या है, बार चार्ट में दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द टू, है ना। तो दो के बीच में, तीन के बीच में, चार के बीच में, कितने के बीच में कंपैरिजन करना है हमें, किसके बीच में, हमें पॉपुलेशंस और कोविड, हमारे पास कोविड केसेस और पॉपुलेशंस के बारे में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर वो कर दिया, क्या कर दिया हमने यहाँ पर कंपैरिजन कर दिया कि पॉपुलेशन कितनी और ये कितनी है, ठीक है ना। ये हो गया कस्टमाइज, हो गया कस्टमाइज। क्या है कस्टमाइज, क्या आप टाइटल इसमें क्या देना चाहते हैं, जैसे कि लीजेंड है, लीजेंड मतलब वो सारी चीजें आपको यहाँ पर जो यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब जो डेटा अवेलेबल है वो सारी चीजें देगा। डेटा लेवल्स क्या है, डेटा लेवल्स, ये डेटा लेवल्स भी यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया कि डेटा लेवल्स नंबर्स मेंशन कर, चाहे तो आप ये दे सकते हैं, चाहे या नहीं दे सकते, ठीक है ना। ठीक है, कहाँ दे सकते हैं आप, कैसे दे सकते हैं, ये इसमें जैसे बेस में दे सकते हैं, ठीक है ना, सेंटर में दे सकते हैं, या फिर एंड में दे सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, बेस में आ गया, ये सेंटर में आ गया, और ये कहाँ पर आ गया, ये एंड में आ गया, ठीक है ना। अब टाइटल क्या है, टाइटल आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि आपने एक क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब आपने क्या कर दिया, हेल्थ प्रॉब्लम कर दिया, कहाँ की हेल्थ हेल्थ कर दिया, इंडिया, सपोज करो इंडिया क्या कर दिया, ठीक है ना, हेल्थ प्रॉब्लम आ गया, इंडिया आ गया। अब सोर्सेस टैक्स क्या है, ठीक है ना, सोर्सेज जो भी टैक्सेस है, जैसे कि फॉर आपने क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है ना। तो आपने क्या कर दिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कर दिया। अब यहाँ पर सोर्सेज क्या है, तो यहाँ आप अपना उसमें सोर्सेज दे, जो भी सोर्सेज आपका होगा, जो भी सोर्सेज दे देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी वेबसाइट का हम लोग, कोई भी वेबसाइट, जैसे कि हम लोग गूगल ले लेते हैं, तो वो क्या कर देगा आपको यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर सोर्सेज क्या है, सोर्सेज हमारा ये है, ये सोर्सेज है आपका, ठीक है ना। हमारा सोर्सेज क्या है, ये सोर्सेज है। तो जब भी ये कोई खोलेगा तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ऑल, ठीक है, सोर्सेज ये है, ठीक है ना। तो ये इस तरह, ये क्या है, ये सेटिंग का है, ठीक है। सेटिंग में जाके क्या करना है, ग्रिड करना है, ठीक है, फिल्टर करना है, ग्रिड करना है। ग्रिड मतलब जैसे कि लाइनिंग आ रही है वो ग्रिड है, अगर ये हटा दोगे तो ग्रिड का हट जाएगा, ठीक है ना। ये हटा दोगे तो ग्रिड आपका हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, पाई चार्ट बना दिया, ठीक है ना। पाई चार्ट के साथ साथ क्या है, जब हमने पाई चार्ट और हमने कौन सा चार्ट बनाया है, पाई चार्ट हमने और रॉ चार्ट बनाया, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास क्या है, डू नोट चार्ट जो होता है, हम डू नोट चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। डू नोट चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं इससे, है ना। इसके अलावा हम लोग लाइन चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। लाइन चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, वही चीज़ है, ठीक है। लाइन चार्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, है ना। लाइन चार्ट क्या है, पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर पॉपुलेशन के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट और करते हैं, तो ये सारा, ये और सेलेक्ट हो, जितने भी वेरिएबल्स आप सेलेक्ट करोगे वो वेरिएबल्स आपको हो जाए, ठीक है ना। ठीक है, अब एरिया चार्ट हो गया ये, ठीक है ना, एरिया चार्ट हो गया आपका, ठीक है। एरिया चार्ट के साथ साथ आपका स्केट प्लॉटर चार्ट हो गया ये, बार चार्ट रेस हो गया ये, ठीक है ना, बार चार्ट रेस जो चलता है, ठीक है, ठीक है ना, बार चार्ट रेस हो गया। और इसके अलावा हिस्टोग्राम चार्ट हो गया ये, ठीक है ना, हिस्टोग्राम चार्ट हो गया ये। और इसके अलावा रडार चार्ट हो गया, रडार चार्ट, ठीक है ना। इसके अलावा ये क्या हो गया, फुनल चार्ट है ये, फुनल चार्ट, ठीक है। इसके अलावा पैक सर्कल चार्ट है, मतलब इतने चार्ट है, आप आराम से इतने चार्ट में बहुत सारी चीजें आप, ट्री मैप चार्ट, ये ट्री मैप चार्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये ट्री मैप चार्ट हो गया। तो ये बहुत सारे चार्ट यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने चार्ट को यहाँ पर मतलब इंसर्ट कर सकते हैं, और इंसर्ट करने के बाद उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ठीक है। आप कैसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं, मैंने बताया, आप जैसे कि गूगल शीट से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, गूगल शीट से भी कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स है, ये सारी चीज़ों को इसमें डेटा, स्टैटिक्स डेटा से भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या है यहाँ पर, ये जो शीट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आ गई। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हम ये देखते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है ना। अब हमारे चार्ट के बारे में बात हो गई, हमने सारे चार्ट के बारे में कर दिया, कोटेशंस, मेंशन जो भी होता है, डेट आप जानना है, ड्रॉप डाउन, पाई चार्ट, इमोजी, टाइमर डालना चाहते हैं यहाँ, यू वांट टू इंसर्ट हियर द टाइमर, अगर टाइमर भी अगर आप डालना चाहते तो टाइमर भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डाल सकते हैं ना, टाइमर डाल सकते हैं, ठीक है ना।
टाइमर, टाइमर के अलावा क्या है, टाइमर के अलावा क्या है? सर टाइमर का क्या यूज है सर यहाँ पे डालना प्रेजेंटेशन अब में? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई क्यूज लिख रहे हैं, कोई भी क्यूज लिख रहे हैं, या कोई ऐसी चीज है जो आपको मतलब विद इन द टाइम में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, तो आप टाइमर लगा सकते हैं। जैसे कि कोई रिसर्च पेपर है या लेट हो रहा हूँ, मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर करना है, अब मुझे घड़ी देखूंगा बार बार, ठीक है, तो घड़ी देखने के बाद आप टाइमर लगा दो, टाइमर को लगा के फिक्स करके आप यहाँ पर, ठीक है, टाइमर चला दो। ये टाइमर आपका क्या, टाइमर इज गोइंग ऑन, है ना, टाइमर क्या होगा, चलता रहेगा, जिससे आपको पता लग जाए। और इसके साथ साथ इस टाइमर क्या करता है, टाइमर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज और दी है, इसमें आप एक म्यूजिक भी सुन सकते हो। कैसे म्यूजिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी इस तरह का म्यूजिक लगा दिया, ठीक है, कोई भी म्यूजिक लगा दिया, यहाँ पर बहुत सारी म्यूजिक है यहाँ पर, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोगों को लिखते में पढ़ते में बड़ा मतलब उनको लगता है कि म्यूजिक सुनना चाहिए, तो वो आप म्यूजिक भी यहाँ पर सुन सकते हैं, यू कैन लिसन द म्यूजिक, है ना, आप सुन सकते हैं। बहुत सारे म्यूजिक यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। एनर्जी, ठीक है, फोकस, ड्रामेटिक, अपबीट और एनर्जेटिक। एनर्जेटिक, ये एनर्जी है भाई, एनर्जी आ रही है आपके अंदर, चलो एनर्जी का एक म्यूजिक भेज दें, ठीक है, चल रहा है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ से इसका इसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग, यहाँ से मिनट्स को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, कितना भी टाइम कर सकते हैं, हाँ, डिपेंड टू यू, ठीक है ना। अब हमने क्या कर दिया, आधा घंटा कर दिया, ठीक है ना, ठीक है ना, आधा घंटा कर दिया, ये 5 मिनट इसका सेट टाइम है, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जब भी हम पेपर लिख रहे होते हैं, ठीक है, जब भी हम पेपर लिख रहे हो, तो एक चीज का और हमें यहाँ पर है, जैसे कि हमें यहाँ पर ये नोट दिया गया है, क्या ये दिया, नीचे दिया है नोट्स। नोट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पेपर लिख रहे हो और बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं है, तो आपने कहा यार मैं जब एआई पर लिख रहा हूँ, नोट एआई पर एक रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ नोट करने के लिए मेरे पास होना चाहिए, मैं कॉपी कागज में नहीं करूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर करता अपने एड नोट्स टू योर डिजाइन, कि हमें जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं एक रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, मुझे उसमें चार्ट भी देना है, ठीक है ना, चार्ट के अलावा हमें मुझे टेबल भी देना है, ठीक है, और टेबल के अलावा और इंट्रोडक्शन को एक्सपेंड करना है, ठीक है, और रेफरेंसेस को चेक करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपने क्या कर दी, आपने एक नोट में आपने यहाँ पर बना दी, ठीक है ना, नोट में बना दी, नोट बन गया। पेज टाइटल जो भी आप जैसे करना चाहते हैं, जैसे कि एआई के बारे में आप कर रहे हैं, ठीक है, एआई के बारे में कर रहा है, तो आपने क्या कर दिया, एक नोट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब जब भी चाहेंगे तो नोट है, जैसे कि अगर आपको कुछ करना है, मतलब जो भी चीज़ है, जो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखी भी है, ठीक है ना, इन चीज़ों को चेकलिस्ट करना है। और दूसरी चीज़ क्या है, आउटलाइंस, इसके अंदर है ना साइटेशन वगैरह इंसर्ट हो सकते हैं, जी जी, साइटेशन और रेफरेंसेस इंसर्ट हो सकते हैं, साइटेशन क्या था, साइटेशन और हाँ रेफरेंसेस हाँ कैसे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब जैसे कि अब ये जो रिसर्च पेपर है ना, रिसर्च पेपर जो हमने लिखा है, इसकी आउटलाइन क्या है, ठीक है। तो जब ये एक नीचे जो दे रखा है नोट है, नोट्स के बारे क्या है, ये आउटलाइन है, ठीक है ना, आउटलाइन है। आउटलाइन क्या कर दिया हमने यहाँ पर, ये आउटलाइन हमारी, ठीक है ना, ये आउटलाइन क्या है हमारी, ये आउटलाइन आउटलाइन यहाँ पर दे दी, जो हम आउटलाइन दे सकते हैं कि हमें कौन सा कंक्लूजन में जाना है, ठीक है, चैलेंजेस में जाना है, प्रोजेक्ट प्रपोजल में जाना है, ठीक है, कहाँ जाना है हमें, ठीक है, एआई इन रिसर्च में जाना है, इंट्रोडक्शंस में जाना है, ठीक है, किस चीज़ में चलना है, जो सारी ये हमारे यहाँ पर हो गए। तो ये 3 चीज़ें हो गई यहाँ पर, क्या हो गया, नोट्स हो गए, आउटलाइन हो गई और टाइमर हो गया, तीनों चीज़ हो गई, और इसका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है, इसका इस्तेमाल कर लिया। अब हमने सारी चीज़ बता दी आपको, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है, ठीक है। अब ये है, लोगो है, हेल्प है, ये सारी चीजें, वो टाइमर है, टाइमर के बारे में बता दिया, एप्स है ना, डिजाइन एक्सेसिबिलिटी है, वो सारी चीजें नहीं। अब अब ये चीज तो, ये वाला सेगमेंट वो हमारा पूरा है, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो कल एक सज्जन थे, वो पूछ रहे थे, दे आर आस्किंग दे के सर वी कैन क्रिएट द क्यूज इन दिस वर्ड, तो वो है आज। Actually, yesterday someone asking me that sir, we can create
क्यूज और नॉट, वो हैं आज? ही इज प्रेजेंट टुडे, ही इज प्रेजेंट? आई थिंक्स ही इज नॉट प्रेजेंट टुडे। ठीक है, तो कल बाद में बता देंगे उनको जब वो अवेलेबल होंगे। ठीक है ना? सर्वे फॉर्म का बता रहे हैं, सर्वे फॉर्म जी सर। क्वेश्चन फॉर्म के लिए बता रहे हैं। नहीं, एक साहब थे कल, कल एक्चुअली किसी ने किया था, वो ये पूछ रहे थे कि सर हाउ कैन क्रिएट ए क्यूज इन द मतलब कैनवा डॉक, है ना? तो वो ये पूछ रहे थे, तो टाइम हो गया था इसलिए नहीं बता पाया। ठीक है ना? तो जो भी होंगे, आप ही थे क्या? नहीं सर, मैं तो आज फर्स्ट ज्वाइन किया है मैंने। ओके 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 बताएंगे तो बढ़िया रहेगा, आप बता दीजिए कैसे करते ओके। हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मतलब कोई क्यूज बनाना है, कोई क्वेश्चंस बनाना है, कोई एमसीक्यू बनाना है, तो वही जो जिस तरह से हम लोग सारा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वही कंटेंट को क्रिएट करना है। जैसे कि आपको आपको यहाँ से राइट मैजिक में गए और आपने यहाँ से क्या किया, जो आपका टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है हमारा, एआई पर। ठीक है, जनरेट 10, ठीक है ना? तो क्यूज कर दो, ये जनरेट कर देगा 10 क्यूज। ठीक है, अगर आप इसमें, ठीक है, एआई से रिलेटेड कर लिया उसने। ठीक है, और आंसर भी उसने आपको प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरह से क्यूज भी कर सकते हो, एमसीक्यू भी कर, वो जो भी आप चाहे ना इससे जनरेट कर सकते हैं, जो भी आप चाहे जनरेट करा सकते हैं ना, विथ पिक्चर्स विथ उसके उसके आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना? तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये तो आज हम लोगों ने तो जो गूगल डॉक के बारे में देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसका, है ना? कैनवा का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स गूगल डॉक है, जब वेन एवर यू आर डूइंग द रिसर्च, जब आप रिसर्च कर रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होती है कि ये जो कंटेंट है ना, ये डॉग में जो सेव है ना, तो ये कहीं जाने का नहीं है। आपका सिस्टम खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, करप्ट नहीं होने का, अगर आपको अपना लॉगिन याद है तो। क्योंकि ये जो होता है, क्या होता है, ये क्लाउड में सेव हो जाता है। और जो जो कैनवा है आपको एक टीवी क्लाउड की स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो भी कंटेंट है आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें अपना कंटेंट मतलब डाल सकते हैं, कोई भी थीसिस का, कोई मतलब जो भी आप लिखना चाहते हैं, है ना? तो इसमें कभी क्या होता है, उड़ता नहीं है, ये कभी उड़ेगा नहीं, करप्ट नहीं होगा कि भाई करप्ट हो गया तो मेरा मेरा कंटेंट चला गया, या मेरा लैपटॉप चोरी हो गया, या कुछ हो गया, कैसा हो गया, क्या हो गया। ठीक है ना? तो वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी रहेंगी। ठीक है ना? Excuse me, sir. यस। Can you please repeat the quiz section? उसमें कुछ नहीं है सर। देखिए आपने क्या किया, देखिए मैं बता दूं आपको, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका क्या है, आपने प्लस के निशान पे गए। प्लस निशान होता है, हम लोग अभी डिस्कस प्लस के वाले पे करते हैं, सारा खेल Yes. इसका नहीं है। ठीक है ना? प्लस में गए, ठीक है, यहाँ पर आया मैजिक राइटर। ठीक है, मैजिक राइटर आया। अब आपको Mm-hmm. क्या लिखना है, एक प्रॉम्प्ट लिखना है। वो प्रॉम्प्ट क्या लिखना है, जनरेट 10 क्यूज ऑन एआई एंड एजुकेशन। ठीक है ना? जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो आप जब ये मतलब ये प्रॉम्प्ट क्रिएट करेंगे, तो वो क्या कर देगा ना, आपको पूरा मतलब क्यूज क्रिएट करके दे देगा। Okay. ओके, सर तो ये पूरा सर मेरा भी आपको क्यूज एक क्या क्या क्रिएट करके देगा। क्यूज नहीं, वो जो भी आप चाहते हैं, जो भी चाह रहे हैं, वो भी क्रिएट करके देगा। लेकिन है ना, सारी चीजों को क्रिएट कर देता है वो। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है सर। यस यस यस। सर ये तो ये है कि सर कंटेंट क्रिएट किया फिर उसने क्विज बनाया, या उस हमने प्रॉम्प्ट दे दिया उसने क्विज बना दिया, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट हो, हम उसे अपलोड कर दें, उसमें से कोई क्विज हमें बनाना हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? जैसे कोई पेपर है या कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें हाँ, से ये बना दें? वो इसमें एक्चुअली इसमें वो वाली फीचर्स है, जो कैनवा है ना, वो कैनवा जी में फीचर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कि दूसरे एआई टूल्स है, जैसे चैट जीपीटी है, जी जेमिनी एआई है, परप्लेक्सिटी है, और दूसरे जी एआई टूल्स है, वहां पर आप उसको अटैच कर सकते हैं। तो इसमें 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 इन लोगों ने क्या किया ना, अटैचमेंट का ऑप्शंस नहीं दिया है। ठीक है,
तो इसलिए आप जी कोई जी डॉक्यूमेंट्स इसको अटैच करके उसका मतलब उसको नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास टेक्स्ट है, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है, ठीक है, और टैक्स अगर आप डालना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई टैक्स की फॉर्मेट में अगर पीडीएफ ना हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है ना, जी हम ये कहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, ये टेक्स्ट है हमारे पास। अब टेक्स्ट को हमने क्या किया, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर जो निशान आता है, कौन सा निशान आता है, ये जो निशान आ रहा है ना, यहाँ जी पर क्लिक किया और यहाँ से ट्रांसफॉर्मर में गए और यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे दिया कि राइट 10 MCQ विद आंसर। तो ये क्या कर देगा, आपको पूरे 10 MCQ उसके जो बेस्ड आपका जो आपकी टेक्स्ट है वो दे देगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये जो टेक्स्ट थी आपकी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 10 क्वेश्चंस विद आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए। सर। और ये जो आप प्रॉम्प्ट देते हैं सर, इसमें जो वो उसके लिए जो फ्री वर्जन है सर, उसमें तो वो कह रहा है कि यू नीड अपग्रेड, कि आपके हाँ, पैड। वो फ्री वर्जन वाले में नहीं है ये सारी हाँ, चीज। क्योंकि फ्री हम वर्जन आपके में पैड इसलिए में। नहीं है कि तो फ्री वर्जन क्या होता है ना, फ्री जी वर्जन तो हर कोई मतलब एक्सेस कर देता है, जैसे चैट जीपीटी है ना। जी जी चैट जीपीटी क्या है, फ्री वर्जन तो हर कोई एक्सेस कर रहा है, लेकिन जो पेड वर्जन है वो जो लोग पेड कर रहे हैं वही कर रहे हैं। तो पेड वर्जन वालों को क्या कर रहा है भाई, जाहिर सी बात है, चैट जीपीटी बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारी चीज प्रोवाइड कर रहा है ना। तो ऐसी कैनवा है, कैनवा क्या कर रहा है, कैनवा में, अच्छा कैनवा में सबसे खास बात ये क्या है कि अगर आप ये एक दिन के लिए परचेस करना चाहते हो तो यू कैन परचेज हो तो 1 डे, यानी वो 1 डे का क्या 69 रुपीज है, ठीक है। वीकली करना चाहते हो तो वीकली कर सकते हो, मंथली करना चाहते हो तो मंथली कर सकते हो, और अगर आप ईयरली करना चाहते हो तो ईयरली कर सकते हो। यानी ये डिपेंड आप पे करता है, जैसे आपको जरूरत है, मुझे 1 हफ्ते की जरूरत है, मुझे अपना रिसर्च का काम करना है, रिसर्च पेपर रखना है, तो 1 हफ्ते का एक हफ्ते का 1 महीने का 599 रुपीज है, और 1 हफ्ते का 200 या 250 रुपये करीब है ना, वो देखना पड़ेगा उसके में, 200 या ढाई सौ जी जी रुपये है। तो मतलब इसमें ये फैसिलिटी है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ की, आपने आपने कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, आपको डॉक का यूज़ कर रहे हैं, डॉक का यूज़ करने पर आपको लग रहा है कि यार ये मुझे प्रीमियम फीचर चाहिए, तो आप एक दिन के लिए वहां से प्रीमियम फीचर 69 रुपीज का खरीद के आप अपना काम कर सकते हैं। यह नहीं होगा कि आपको 4,000 रुपये देने पड़ेंगे तभी आप काम कर सकते हैं, ठीक है सर। तो ये फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल ये पॉइंट। है ना, ठीक है। और एनी अदर, मोहम्मद शेब, डिफरेंट व्यू डिफरेंट आउटपुट, छाया छाया श्याम, मैम ये पूछते डिफरेंट व्यू डिफरेंट आउटपुट, आई नॉट गॉट इट। So you will provide video also of this session? हाँ, we will provide we Okay, will because provide yes, I did not attend yesterday's class also. ओके ओके। Today I एक्चुअली यस्टरडे देयर वाज और इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था कि कैनवा होता कैसा है, फीचर्स फीचर्स, लेकिन अब डिटेल में थोड़ा सा हम yes लोग। sir, I have done this course of yours earlier also. ओ Last year also I did this. ओ गुड। बट मतलब मैंने सीखा तो यहीं से ही था, आपके कोर्स से ही। थोड़ा अब मैं कर रही थी तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा एक दोबारा रिवाइज हो जाएगा जस्ट, तो हाँ हाँ, इसलिए मैंने ठीक है। अब दोबारा ही ज्वाइन करा ये है। भी देखिए, आपने जो जैसे बहुत सारे लोग ना यूज कर रहे हैं ना कैनवा, तो आप यूज हम्म। कीजिए उसे, और यूज करने के बाद ना क्वेश्चंस अपने नोट डाउन कर लीजिए अपने अपने हाँ, तो नोट थोड़ा पैड सा पे, ये वाली और बात भी पड़ जाती है कि आई एम यूजिंग, बट जैसे अब आपका देखती हूँ कि आप कर रहे हैं, तो मेन चीज क्या है कि आपका पेड वर्जन है, हम तो वही फ्री कैनवा यूज कर रहे हैं, तो बहुत सी चीजें हम एक्सेस नहीं कर पाते, हाँ जी जी जी। वो चीज है। हाँ हाँ। नहीं नहीं, तो थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है तो पेड वर्जन क्या है, इतना 50-60 रुपए में अगर आपको लग रहा है यूजेबल है आपके लिए, 50-60 रुपए का अगर आप यूज करके देखें, अच्छा है बहुत। यानी जो ये जो कैनवा है ना, दिस इज अल्टीमेट टूल्स, है ना।
अल्टीमेट टूल्स है ये, इसका अभी तक कुछ ऑप्शन ही नहीं आ पाया, इतनी सारी चीजों को इसने मतलब एकदम साइमल्टेनियसली इंटीग्रेट कर दिया। आप देखिए कल का जो सर सेशन होगा। आप कोई क्लास ऐसे एनिमेशन वगैरह पे नहीं करवा रहे नहीं, अभी हम कल तरीके आपको से? जो बताएंगे ना, कल आपको हम पूरा ये बताएंगे इमेज का, कि इमेज को हम कैसे एडिट करते हैं, क्या क्या फीचर्स है। बताइए, जितने फीचर फोटोशॉप जो मैं बड़े बड़े जो कुछ मतलब टूल्स हैं उसमें नहीं है, वो इसमें है। ठीक है। नहीं, मैं सर कुछ ऐसा देखना चाह रही हूँ कि जैसे एक कंसिस्टेंट इमेज हम क्रिएट करें, और कंसिस्टेंट इमेज से ही हम कुछ मतलब वीडियोस वगैरह जनरेट कर पाए, हाँ, वो टीचिंग हो जाएगा, वीडियोस। वो मतलब हो ऐसा जाएगा। कि जैसे कोई हमने एक टीचर का एक इमेज क्रिएट कर लिया, मतलब कंसिस्टेंट इमेज की वही इमेज रहे, हम्म। और हम उसको एक टीचिंग वीडियोस कुछ ऐसा जनरेट कर पाए, तो उस तरीके का कुछ ऐसा कोर्स मैं नहीं मैं मतलब मैं कल सिखा सकते आप? मैं कल बता दूंगा आपको ना, वो सारे, जब हम लोग कल का जो सेशन है हमारा, तो ये सारी हम्म। चीजें भी होंगी। अगर मैं बाई चांस भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा। मैं कल ये सारी चीज जो आप बता रही हैं ना, वो सब है इसमें। ये वीडियो भी जनरेट करता है, इमेज भी जनरेट करता है, और जैसा आप बता रही हैं वैसा भी करता है, ठीक है एक ना, चीज उसके वीडियो अकॉर्डिंग। मैंने कई बार जनरेट करके देखी, मतलब क्या होता है, इमेज जो होती है ना वो कंसिस्टेंट नहीं रहती, मतलब एक सी नहीं रहती। जैसे एक वीडियो में कुछ अलग इमेज जनरेट, मैं ऐसा चाह रही हूँ कि जितनी भी वीडियो मैं जनरेट करूँ सब में इमेज एक सी आए। नहीं, वो मतलब तो मैम, वो एक्चुअली उसका एल्गोरिदम ऐसा है ना, एल्गोरिदम है, जहाँ कॉमा या डॉट भी थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है ना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट बार बार डिफरेंट डिफरेंट देता है। और इसके लिए एक दो एआई टूल्स हैं, तो मैं हाँ, वो एआई टूल्स आपको सजेस्ट करूंगा कल। ठीक है ना। तो वो जी एआई जी। से आप करेंगी तो वो फ्री का चल रहा है अभी। आपने गूगल स्टूडियो एआई के नाम सुना है कभी? जी जी सुना तो है, लेकिन अभी यूज नहीं करा। हाँ, तो आप उस पे मैं आपको कल यूज करके बता दूंगा, वो जो चीज़ आपकी क्वेरी है ना वो सब क्लियर हो जाएगी, है ना। उस पे बहुत ही अच्छा तरीके से, मतलब, लेकिन वो यही है ना कि अभी तो जो उसका जो वीडियो, एक्चुअली जितने भी वीडियो के वर्जन है ना, जैसे सोरा एआई है, आप सोरा एआई हाँ है आपको पेड करना पड़ेगा। वीडियो जो है ना, वीडियो वर्जन में सबको आपको मोस्टली पेड करना, फ्री के बहुत ही कम है। ठीक है ना, फ्री के नहीं हाँ है, हाँ। पेड करना पड़ेगा सबके लिए, तो लेकिन मुझे अभी। पेड कर दें, लेकिन मतलब आई एम इन द सर्च ऑफ सच अ टूल की जहाँ पे मतलब एक कंसिस्टेंट इमेज क्रिएट कर सकें। मैं आपको एक कर देंगे वीडियो आप। मतलब आपको मैसेज में मैं शेयर करूंगी, आप देखिएगा। मैं कुछ उस तरीके के चाह रही हूँ, आप मतलब मैं आपको मैसेज करूंगी, वो देखिएगा आप। मैं इसको देखूंगा, आप देखिए, फिर मैं उस पर हाँ करता हूँ, देखा आपको कल मैं उसमें सर आपने इसमें जो थीम रखी हुई है डेटा एनालिसिस इन रिसर्च विजुअलाइजेशन, जी तो मैंने स्पेशली इसी के लिए है ना ये वर्कशॉप आपकी ज्वाइन करी है। जी। तो इसमें डेटा जो है डेटा एनालिसिस वो क्या क्या होगा इसके अंदर, डेटा एनालिसिस में क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं इसके अंदर? नहीं, अब देखिए, हमने आपको बताया ना, ये डेटा एनालिसिस का है, वो हमारा डेटा एनालिसिस नहीं है, आपने इसमें लिखा कैनवा है एआई फॉर द रिसर्चर। नहीं, आपने जो मास्टर एआई कैनवा एआई 4 लिखा है ना आपने जो वर्कशॉप के अंदर, तो इसमें यही देख के मैंने ज्वाइन किया था कि नहीं क्या? डेटा विजुअलाइजेशन समझ गया, क्योंकि कैनवा तो इमेजेस करता है। हाँ तो जो मेरे पास डेटा है, मान लीजिए मेरे पास 500 लोगों का डेटा है, तो हाँ डाटा एनालिसिस कैसे होगा इसके अंदर? आपने जो बताया अभी एक्सेल की शीट बताई थी आपने, तो हाँ एक्सेल की शीट से हो हाँ। जाएगा इसके देखिए, अंदर? इसमें मैं बता दूं, आप तो कैनवा में आप 500 लोगों के डेटा को एनालिसिस तो नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एसपीएसएस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। या फिर एज जो लार्ज मॉडल स्केल वाले जो चैट जीपीटी वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें। हाँ, अगर इसमें 10 20 30 लोगों का 50 लोगों का डेटा है, तो टेबल के हम्म, अकॉर्डिंग, जिस तरह से हमने यहाँ पर टेबल क्रिएट किए ना। हम्म। कहाँ गई? वो तो सर इसमें ऑप्शन आ रहा है ना इसके अंदर, हाँ हाँ तो इसमें सर एक्सेल का ऑप्शन भी आ रहा है, वो एक्सेल का ऑप्शन आप प्लीज बताइए कल। हाँ, एक्सेल का। नहीं, तो एक्सेल मैंने बताया तो शायद, अब नहीं बताया। नहीं, एक्सेल का नहीं बताया अच्छा, आपने, वर्ड का बताया इसका। कल आपने ज्वाइन शीट नहीं किया था ना? मैंने हाँ इसमें ज्वाइन किया है, तो इसमें शीट का ऑप्शन आ रहा है। तो शीट से आप मुझे बताएंगे कि किस तरह से यूज करते हुए इसको डाटा विजुअलाइज कर सकते हैं? हाँ, और मैं जिस तरह गूगल शीट है और एक्सेल है ना, वैसे ही इनका वो फीचर है शीट वाला। चैट शीट वाला कल बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। प्लीज शीट बताइए। वाला कल का शीट वाला मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। शीट वाला देखिए, तो मैंने कल कल इसका शीट वाला कल मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था ना, है ना। अच्छा लेकिन कल ठीक आप मुझे बताइए, कल मैं बताता हूँ इसको, ठीक है ना।
वो तो 4-5 दिन हो रहे हैं, उसमें तो आप काफी बताएंगे, डिटेल से बताएंगे भी आप। हाँ 2 दिन हुए हैं आज तो हाँ अभी तो और बताएंगे डिटेल से एक्सेल के बारे में। हाँ। हाँ। नहीं, क्या डिटेल्स एक्सेल के बारे में, हम्म। शीट के बारे में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शीट के बारे में बता देंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपकी ठीक। रिक्वायरमेंट शीट की है, तो शीट के बारे में बता देंगे। हाँ, शीट की रिक्वायरमेंट शीट में और क्या विजुअलाइजेशन जैसे मैंने अभी ट्राई किया, आपने जैसे बताया था, तो पाई चार्ट बन के आया, बड़ा अच्छा बन के आया इसमें हाँ, डेटा का। वो सारी चीजें अवेलेबल है। वो जिस तरह से पावर बीआई देगा ना, पावर बीआई है ना, हम्म। उसी की तरह काम करता है इसका शीट, ठीक है ना? तो कल बता देंगे हम आपको, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है? पावर बीआई की भी कराएंगे सर आप वर्कशॉप कभी? पावर बीआई अभी तो नहीं करा रहे, पावर बीआई कराएंगे, बाद में कराएंगे, करा देंगे, ठीक ठीक है? है। करा देंगे, बाद में करा। आपकी इससे वर्कशॉप काफी अच्छा आइडिया मिलता है सर, काफी कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, आई थिंक टाइम इज ओवर एक्चुअली, माय अनदर कॉन्फ्रेंस इज, द चलिए। पीपल आर वेटिंग। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, और वी विल see you tomorrow. You can please sir introduce the perfectionity tool says also, just only introduction। ये परफेक्सिलिटी टूल तो मैम फ्री में है, अगर आपका एयरटेल का है, परफेक्सिलिटी ले लिए, 17,000 रुपये का फ्री में आपको बोनस मिल रहा है इसमें। 17,000 रुपये कौन है? चौहान चंद्रेश। परफेक्सिलिटी आप लॉग इन कर लीजिए अपने मोबाइल पर, ठीक है? फ्री में मिल रहा है 17,000 का, वो चैट जीपीटी की तरह है, ठीक है? और अगर आपका एयरटेल का नंबर है, देखना आपका ऐड नहीं देख रहा है आगे, परफेक्सिलिटी प्लस AI, परफेक्सिलिटी एयरटेल वो दे रहा है परफेक्सिलिटी फ्री 1 साल के लिए, ठीक है? ओके तो सर। वो वर्जन है, वो आज भाई यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। ओके, थैंक यू।